we'll start with the reproduction in organisms and reproduction in plant will end up today. Mostly both the chapters we will try to cover up. Okay, when we talk about the reproduction, what do you mean by reproduction? Reproduction is nothing but the giving birth or production of an individual which is lookalike to the ओरिजिनल पॅरेंट. बरोबर की नाही. एक आपले मराठीमध्ये ज्याला बोलतो आपण आपल्यासारख्याच दूसरा सजीव निर्माण करने. इन शॉर्ट अपने जैसे दूसरे जीव को निर्माण करना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रजनन या इन शॉर्ट रिप्रोडक्शन. Specifically, when we talk about reproduction, so let's understand the different types of reproduction in organisms. The first and most important, as I earlier said, reproduction is the process in which organism produce young ones similar to itself. So it will be the one like particularly if you look at the lifespan of an individual. So pre-reproductive health, reproductive years, reproductive year, particularly post reproductive year, मतलब the particular एक specific time होता है, उसी time interval में the organism will be able to reproduce itself. So when we talk about that one, no individual, as you are aware, it's immortal except unicellular organisms. There are no natural death in unicellular organisms. Based on the number of participants, there are two types of sexual types. So reproduction types, एक आपका asexual, दूसरा आता है sexual. When we talk about asexual reproduction, so before that, these are some of the lifespan of the organisms. You can rose lifespan around 5 to 7 years. Let's come to the asexual reproduction. What do you mean by asexual reproduction, Arya? Asexual reproduction. So when reproduction takes place with the single parent, there will no other parent will be involved. So there will be no fusion of the gamete. Is known as asexual mode of reproduction. Specifically, when you look at over here, single parent has been involved. So there will be three types of reproduction: fission, budding, vegetative propagation. When you talk about fission, binary fission, and the second one is your multiple fission. Just so look at the diagram clearly represents. So this is the binary fission. Look at this. So cell has been divided in two equal halves. Not equal half, two halves. So two part में divide होगा. This is on the binary fission. When we talk about this one, similarly, so when we talk about paramecium, there will be a multiple nuclei form, and once this has been formed, so it will be the outermost cells will be ruptured, all will be ruptured, and the multiple organisms will be released. That is binary में दो होगा, multiple में there will be number of organisms will be formed. Look at this one. Okay. Fission is क्या होगा हमारा specifically when talk about fission. So under unfavorable condition, जहां पे हमारा क्या होता है ना, incestation मतलब क्या? Look at this one. हाँ, और उसका मेन फंक्शन क्या है? The most important, when the conditions are not favorable, means the outside condition is not like promoting the health and promoting the reproduction and other things. At that time, amoeba will develop a three-layer protective covering surrounding it, which is known as cyst, which is known as incestation. As soon as condition become favorable, inside the body will undergo division, mitotic division, and the cells will be divided in two parts, and that is known as binary. अभी इसी का 2 से 4, 4 से 6, 8 ऐसे मल्टीपल जब होगा, it will be a multiple fission. Okay. But budding, usually in case of yeast, sponges, hydra, you can see there will be lateral outgrowth will be seen on the body, and this will be growth. Once it has been grows, detached from the main part, main organism, and now it will be a individual entity. उसे हम लोग कहते हैं budding. Most common in yeast, hydra, and sponges. Next, madam. Connect कर पर. डिस्कनेक्ट किसने करा इस
WhatsApp. Yes, okay. So talk about fragmentation. Fragmentation specifically Spirogyra, Hydra, and the planaria, where it has an highest degree of regeneration. If you cut that organisms in two half, so both the half will give rise to the new individual, will be develop as a new individual. तो अगर आपको घर पे जाकर ट्राई मत करना, आई कट माई उंगली एंड देन इट विल बी लाइक मेरी उंगली से नया हो जाएगा। या वो इसमें स्पाइडरमैन के मूवी में वो डॉक्टर करते हैं ना कि लाइक दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दी और लाइक इनकॉर्पोरेट दी रेप्टाइल जीन इन ओन बॉडी, बिकॉज उसका एक हाथ नहीं होता, सो दैट कि क्योंकि रेप्टाइल के टेल में रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है, तो अगर वो झड़ भी जाता है तो इट हैज़ एन एबिलिटी टू रीजनरेट। तो घर को जाके घर पे कोई छिपकली पकड़ के ऐसा कुछ ट्राई मत करना। ओके, we'll talk about last and most important vegetative propagation, which is very important in terms of plants specifically. So there will be a apart from the seed, when other body part or other part will give rise to the new individual, और जहाँ से हमारा नया प्लांट ग्रो करता है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन टू चैतल के घर पे गए चाय पानी के लिए, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा देयर इज अ वैरायटी ऑफ रोज। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कट करते एंड वी प्लांट इट इन आवर होम। तो वहाँ पे आने के बाद जब हम लोग ने पर्टिकुलर स्टेम को कट करके जब हम लोग ने उसे स्टेम को कट करके जब हम लोग ने वहाँ पे हमारे घर पे इम्प्लांट किया, तो सिंपल वहाँ पे मैंने क्या किया, कटिंग किया उसे। दैट इज मतलब मेरे स्टेम से पूरा प्लांट आगे इन फ्यूचर में ग्रो होगा। सेकेंडली कभी कभी क्या कहते हैं, वी ट्राई टू मतलब क्या कहते हैं, एक हम लोग मेन प्लांट देते हैं जो कि हमारा रोज का रेड वाला है, और वहाँ पे दूसरा एक रोज का प्लांट है जहाँ पे वो हमारा पिंक या सॉरी व्हाइट या और येलो है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका बर्ड वहाँ से सुपरफिशियली कट करते हैं बर्ड उसको, और यहाँ पे जो हमारा व्हाइट वाला रेड वाला मेन प्लांट है जिसे स्टॉक कहा जाता है, उसके ऊपर वहाँ पे कटिंग करके उसे ग्राफ्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे रिप्लेस जो प्लांट जो पर्टिकुलर पार्ट बर्ड हम लोग ग्राफ्ट करते हैं उसे सायन कहते हैं, जिसके ऊपर कहता है उसे स्टॉक। आफ्टर पर्टिकुलर उसे टेपिंग एंड ऑल करने के बाद जब देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इट गेट इम्प्लांट ओवर हियर, और वहाँ से नया होता है, यू विल गेट दी मिक्स ऑफ दिस वन। ना वो पूरी तरह रेड रहेगा ना पूरी तरह व्हाइट, या तो पिंक मिलेगा आपको अगर व्हाइट रेड और व्हाइट किया तो, या तो हमारा रेड और अगर आप येलो करोगे तो यू माइट बी गेट अ शेड, मतलब रेड येलो और आपका इन बिटवीन ऑरेंज या फिर थोड़ा ऑरेंज शेड में आ जाएगा, तो दैट टाइप ऑफ यू कैन गेट। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ग्राफ्टिंग जिसे देयर आर सर्टेन प्लांट जिनके लीव्स होते हैं, जिनके लीव्स से भी नया फूल एज अ प्लांट ग्रो करता है, उसे हम लोग दिस इज अनदर वे ऑफ आपका प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली अगर आप उसके अलावा अगर देखेंगे रेनी सीजन के टाइम पे घर में अगर मम्मी आलू लगाती है तो आलू पोटैटो लाने के बाद देखते हैं, सो मस्ट हैव नोटिस कि वहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइटिश येलोइश कलर का एक पार्ट ग्रो करता है नोन एज आइज जिसे हम लोग कहते हैं। और ये फाइनली अगर वो जिस बकेट में रख रहे हैं ना वहाँ से अगर थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट रहेगा तो इसमें लाइक ऐसा ऊपर पूरा डंडे जैसा आ जाता है। दिस इज अनदर वे ऑफ, वहाँ पे तो कौन सा आपने सीड नहीं किया, स्टेम इट्स लाइक पोटैटो एज यू इट्स अ स्टेम, उस स्टेम ट्यूबर से वहाँ पे हमारा पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है। दैट वे अपार्ट फ्रॉम सीड्स जब कोई और प्लांट का पार्ट नए पार्ट को प्रोड्यूस कर नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एम आई क्लियर? तो टिल नाउ वी कवर हम लोग ने क्या क्या किया था स्पेसिफिकली वी कुड एबल टू कवर। हम लोग ने पहला चीज क्या कवर किया, सबसे पहला किया रिप्रोडक्शन। उसके बाद दो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो, और सेक्सुअल बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल। सेकेंडली उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अगर उसमें भी सबसे पहला हम लोग ने लर्न किया कौन सा वाला, फीजन। उसमें बाइनरी फीजन, दूसरा आएगा मल्टीपल फीजन। उसके बाद हम लोग ने कौन सा देखा, बडिंग। बडिंग में हमारा सिस में वगैरह हम लोग ने हाइड्रा देखे। उसके बाद हम लोग ने देखा फ्रैगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा वगैरह में, हाइड्रा में हम लोग प्लानेरिया में देख सकते हैं, प्लानेरिया में रीजनरेशन में आ जाएगा। उसके बाद फाइनली हम लोग ने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उतना ही नहीं, यू मस्ट हैव जब हम लोग ने 11th में मार्फोलॉजी चैप्टर लर्न किया था उसमें रनर था, एक्वाटिक रनर इन लाइक आज के डेट में लाइक बहुत से स्कैम चल रहे हैं अपने कल्याण उल्लासनगर में। हम लोग देख रहे हैं वो लड़कियां बोल रहे दिस इज लाइक ये तुलिप तुलिप लेके घूम रही है, ये तुलिप का प्लांट, दिस नॉट एक्चुअल तुलिप, इट्स अ वाटर हाइसिंथ। ये हमारे पानी में पाया जाने वाला एक वाइल्ड वैरायटी है,
वन ऑफ द मोस्ट, जिसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्चा करती है, और वो तुम लोग को एड़ा बना के मतलब स्कैम बना के बचते कि ये तुलिप है, नासिक का कुछ अलग से नाम लेते हो तुलिप, इट्स नॉट तुलिप। और तुलिप कल्याण में कैसे सर्वाइव करेगा? इट रिक्वायर्ड कोल्ड क्लाइमेट। कल्याण में दोपहर का धूप देखोगे, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35-40-41 डिग्री होता है, वहाँ पे तुलिप ग्रो करेगा। यू नीड अ, वहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन, और वो ऐसे ही खुले में रखा है, जिसका ऊपर ऐसा मतलब जो उसका स्टेम रहेगा उसको कट किया हो, ऊपर से पिन किया हुआ है। So you get, being a science student, you are get fooled easily. So it's a water hyacinth, nothing but the water hyacinth. यही है वो, कैसे हो रही है, यही है वो। It's not tulip, it's a water hyacinth. आपको तुलिप बोल के यही बेचा, हाँ? नको नाही गरज, बरं आहे. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट झालंय. हाँ, एक मिनिट. Okay, another way of reproduction is your spore formation, like zoospore, microscopic motile structures, जैसे कि हमारे Chlamydomonas, there are certain algae and protists, जिसमें क्या होता है ना, they will develop a specific spores, और ये spores जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ये जो spores होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं zoospores. और Chlamydomonas is the example, तुम लोग को आया था ना 12th के बोर्ड के एग्जाम में, वही था ना, zoospore मोटाइल का उसके ऊपर था ना, Chlamydomonas मैचिंग करने के लिए कुछ, जूसपोर वाला नहीं था क्या? नहीं था. तो वहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो जूसपोर्स आर द वन जो कि हमारा मोटिलिटी, मतलब दे आर द मोटाइल वन, जहाँ पे जाके ये स्पोर्स ट्रैवल करेंगे, जहाँ पे एक जगह पे जाके सेटल होंगे, अगर वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है तो इट विल बी द वन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ से आपका नया क्लाइमेडोमोनास विल डेवलप. ओके, दूसरा आएगा हमारा इज योर gemel formation. Gemel formation, sometimes in case of penicillium, they will produce a specific spores which is known as conidia. Conidia जिसे हम लोग कहते हैं, और यहाँ से conidia में अंदर होने वाले spores conidia spores, और ये spores जहाँ पे जाके settle होंगे, once the condition become favorable, it will give rise to the new fungus, penicillium notatum. ओके, इसे टिप पे जो होते हैं उसे conidia कहते हैं. यहाँ पे इसके अंदर स्पोर्स रहेंगे, इट विल बर्स्ट आउट, स्पोर्स बाहर आएंगे. स्पोर्स समझो फॉर एग्जांपल एक जगह पे सेटल हो गए, यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड ऑल है, तो वहाँ पे वो नहीं, उनका मतलब ये नहीं हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा. वंस द कंडीशन बिकम फेवरेबल, थोड़ा सा मॉइस्ट डम क्लाइमेट है, इट विल गिव राइज टू द न्यू फंड. ओके, लास्ट वन इज योर जेमल फॉर्मेशन स्पॉन्ज. वहाँ पे एक देखोगे आपका आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यहाँ पे पर्टिकुलरली यू कैन सी, और वंस इट हैज बीन फॉर्म जेमल्स में कंडीशन बिकम फेवरेबल, इसके अंदर के जो स्पोर्स होते हैं दिस विल बी गेट ओपन अप, और स्पोर्स से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए. ओके, नाउ कम टू sexual reproduction. Okay, this is the reproduction where both male and female parents are involved. Both male and female parents are involved. So either by the same individual, by the different individuals of the opposite sex. हाँ, specifically यहाँ पे देखेंगे the as a result the offspring which are formed is not identical to the parents. अगर यही होता तो हम लोग हमारे मम्मी पापा के एकदम कार्बन कॉपी होते थे, but there is certain variation है ना, because as during gamete formation, जो हम लोग meiosis की बात करते हैं, meiosis के टाइम पे Chasmata point is formed where the homologous chromosomes get paired, और वहाँ पे paired होने के बाद genetic material get exchange. Due to that exchange, वहाँ पे कुछ चीज ऐसे हो गए जो नए वेरिएशंस आपको देते हैं, ये नए वेरिएशन देते हैं, इसके वजह से आपको वेरिएशन मिलता है. ओके, वी आर नॉट अलाइक, वी आर नॉट आइडेंटिकल टू दी आवर पेरेंट्स. ओके, it is an elaborate, complex, and slow process compared to the asexual reproduction. It's a period of growth to reach the maturity of sexual reproduction is known as juvenile phase. मतलब कि particular by birth से लेके हमारा till the time it you reaches to the puberty, juvenile. puberty से आएगा till the time तक, जब जहाँ तक हमारा मतलब puberty मतलब gamete producing capacity खत्म हो जाता है, जब खत्म होगा that is वो period तब होगा reproductive, उसके बाद वाला end. पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ओके, सो हायर प्लांट लाइक प्लांट अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली फ्लावरिंग प्लांट, द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज दैट इज बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज.
There will be annual plant. Biennial plant shows the clear and vegetative propagation and senescent phase. What was senescent? Senescence मतलब अबाउट टू डाई, मतलब कि जब हमारा एजिंग प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं सेनेसेंस, मतलब प्लांट अबाउट टू डाई जिसे कहते हैं हम लोग, सेनेसेंस मतलब एजिंग। कितने लोग ने बैम्बू के फ्लावर देखे थे? परंतु रेयर है, बहुत रेयर। यूजुअली हम लोग इतना टाइम रखते ही नहीं। बाम्बू यूजुअली बाम्बू को ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगता है आपको पता है? आइडिया? यस, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद आपको ग्रोथ दिखना चालू हो जाता है। मतलब आप जब बाम्बू के तो ये कर देखे रख देते एक, मतलब ऐसे जमीन पे, पहले तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ दिखेगा, और उसके रूप पेंटेड पेंटेड पहले 1 साल 2 साल तुम लोग और कुछ ज़्यादा ही नहीं करना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप ये कर दो उसको, फार्मिंग करो, आपको 3 साल के बाद या 3 साढ़े 3 साल के बाद, पहले 3 साल में हार्डली इतना ग्रो करेगा, लेकिन आने वाले 6 महीने में ऑलमोस्ट 20-30 फीट ग्रो करता है। दिस इज व्हाट, मतलब कि आपका और उसमें वन ऑफ द वेरी रेयर फेनोमेना बैम्बू में अगर हम लोग देखेंगे, जो फ्लावर्स आते हैं विच इज वेरी रेयर फेनोमेना, 50 to 100 ईयर्स में एक बार आते हैं। ओके, ठीक है। ये आपका, ये हिंदी मूवी वगैरह में दिखाते हैं, डीडीएलजे देखा रहेगा तुमने तो, शाहरुख खान का। सो स्ट्रोबिलियांथस आपका इज अ प्लांट विच शोज फ्लावरिंग इन वंस इन 12 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट। In animals, juvenile phase is followed by the morphological and physiological changes prior to the reproductive behavior. So, specifically, birds living in nature by lay the eggs only in seasonally. Specifically, however, birds in captivity, that is poultry, can be made to lay without throughout the year. यही अगर पर्टिकुलरली हम लोग होते हैं, अभी मैं बोलूँगा बर्ड्स एक स्पेसिफिक सीजन में ही अंडे देंगे, लेकिन आप बोलोगे सब पोल्ट्री फार्म में तो पूरे साल भर अंडे दिए जाते हैं। So we could able to, because of certain hormonal injections and other things, we could able to, मतलब वहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं, उस ट्रिगर कर सकते हैं, उस चीज़ों को ट्रिगरिंग किया जाता है। यही रीज़न होता है ना, डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि थोड़ी चीज़ें मत खाया करो आप, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करो। ओके, यूट्रस साइकिल और यूट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन नो? हम्म, बातें का यूट्रस म्हणजे मग काय असतं? There is a difference. There is a difference. Menstrual cycle. The menstrual, this one, uterus. They're very close. But हाँ, the endometrium फॉर्मच झालं नाही तर सायकल कशी होणार? फॉर्म होणार नाही बाळा, कसं रे? जर का एंडोमेट्रियम फॉर्म नाही झालं एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये, हां, जे आहे ते डिजनरेट होऊन गेलेले. That's the difference. When we talk about uterus cycle, both are the ways of मेंसेस, मतलब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम डीजेनरेट होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, बट इन केस ऑफ यूट्रस साइकिल एंडोमेट्रियम गेट रीअब्सॉर्ब, वहां पे ब्लीडिंग नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होता। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ primates, and we belongs to the primates. Okay, not मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट हैपेंस टू द मेल, नहीं तो पता चला बोलोगे सर प्राइमेट्स में था तो मेल को भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। So this is like cyclic behavior changes which happens or cyclic hormonal changes which happens in specifically primates में अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, follicle stimulating hormone, then आपका luteinizing hormone, this plays an important role in playing in menstrual cycle, the uterus cycle. Specifically in like आपका जो काउ कैटल उसमें जो रहेगा will be लोग बफेलो, उनमें एंडोमेट्रियम डिजेनरेट नहीं होगा, it will be reabsorbed, will be
Okay. Okay. Based on the breeding season, and mammals are of two type. एक होता है seasonal, दूसरा होगा continuous. Mammals which are living in natural condition exhibit reproductive cycle only during favorable seasons. Specifically अगर आप बोलोगे समर या फिर पर्टिकुलर विंटर के टाइम पे एक पर्टिकुलर सीजन में उनका ब्रीडिंग पीरियड होगा. But like they continuously they are the one like reproductive active throughout their reproductive phase. जैसे कि humans, ऐसा कुछ नहीं ना भाई, साल के फर्स्ट साल में ही मतलब रिप्रोडक्ट बच्चे हो जाएंगे, सेकंड ईयर में सेकंड हाफ में बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं. सो थ्रू आउट द ईयर इट्स बीन लाइक, यहाँ पे देखेंगे हम लोग. ओके. देन senescence, old age, the last phase of the life and the end of reproductive phase. During this phase, concomitant changes in occurring body like slowing of the metabolism etc. ultimately leads to the death. Specifically और जहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे एल्डरली एज के चांस आपके सिम्टम्स जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होता है, स्पेशली फीमेल्स में 45-50 के बाद हम लोग देखेंगे, इन मेल एज वेल 45-50 के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ऑर्गन का फंक्शनिंग कैपेसिटी डिटोरेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आज जितना मैं फॉर एग्जाम्पल जितना तेज शैतानी दौड़ लेंगे उतना आई माइट नॉट बी एबल टू रन बिकॉज आप यंग हो. आई एम 40 प्लस अगर हम लोग आते हैं तो आप उतना नहीं हो. हाँ, वंस आई कैन डेवलप द एबिलिटी, मतलब कुछ चीज़ें जहाँ पे आई कैन स्कोर ओवर चैताली. द थिंग इज दैट रनिंग के लिए बोलोगे चैताली विल बी फार हायर देन मी. सेकेंडली दूसरी चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपका एज प्रोग्रेस होता है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है, मतलब उतना ये नहीं होता. लीवर का फंक्शनिंग, आपके जीआई ट्रैक्ट के एंजाइम्स का सिक्रेशन एंड ऑल प्रॉपर नहीं होता. इसलिए आपने देखा रहेगा जो हमारी दादी नानी दादा नाना उनका खाना कंपेरेटिवली कम होता है, उनसे हजम नहीं हो रहा है, प्रॉपर नींद नहीं हुई तो उनका खाना हजम नहीं हो रहा है, उन्हें एसिडिटी वगैरह इसकी तकलीफ ज़्यादा होती है बिकॉज मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है. ओके. सेवन. ओके. In plants and animals, hormones causes the transition between the juvenile, reproductive, and senescent phase. The interaction between the hormones and the environmental factors is regulate the reproductive processes as well as the associate behavior expression of the organisms. सिंपल सी बात है ना. अगर आप देखोगे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने के पहले वाला मेंस्ट्रुअल का फेज एंड उसके बाद वाला फेज, तो इट्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस एंड द environmental factor plays an important role. Particularly those 5 days if you talk about at that time hormonal changes are drastic changes. मतलब पहले 5 दिन जिसमें हम लोग देखते हैं एस्ट्रोजन मतलब एफएसएच लेवल ऑन द अर्ज पिकअप हो रहा है, फिर हमारा एलएचबी पिकअप हो रहा है, उसके साइमल्टेनियसली प्रोजेस्टेरोन लेवल स्टैग्नेंट है, एस्ट्रोजन लेवल स्लोली स्लोली बढ़ रहा है. एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द लो प्रोजेस्टेरोन लेवल एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हुआ और उस टाइम पे घर में किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो चिड़चिड़ हो जाना, देन ऑल उस टाइम पे या एग्जाम का प्रेशर एंड अदर थिंग्स विल बी. यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोलता हूँ, फीमेल बॉडी इज मोस्ट वर्सटाइल बॉडी. यू कांट एग्जिबिट द एक्सपेक्ट कि भाई एक लड़की में जो कैरेक्टरिज है सेम एज इट इज विल बी कॉपी इनटू नेक्स्ट गर्ल एज वेल. नहीं, बोथ द गर्ल्स आर डिफरेंट. दोनों भी डिफरेंट है, दोनों का हार्मोनल लेवल डिफरेंट है, दोनों का अगर मैं बोलूँ दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है, दोनों का खाने का तरीका, स्लीप पैटर्न, ये सारी चीजें, स्ट्रेस लेवल लेने का तरीका अलग होता है. The most relaxed guy in this class. Huh? So it will be like that. So जहाँ पे चीजें आज जितनी रिलैक्स होगी आपकी चीजें उतने आराम से हो जाएगी, लेकिन आपका हार्मोनल लेवल्स विल बी बैलेंस रहेगा और चीजों को प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके. तो ये हमारा इवेंट्स और स्टेजेस जैसे थे. प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. फर्टिलाइजेशन मतलब जो गैमेट ट्रांसफर हुआ उनका फ्यूजन हुआ, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी से जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. सो दीज आर द इवेंट्स व्हिच प्रायर टू फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमेट ट्रांसफर. सो गैमेट जो बने मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल बी ट्रांसफर टू स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस में oogenesis में द ओवम विल बी रिलीज इनटू द fallopian tube, where the in गैमेट ट्रांसफर में अगर वही देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गैमेट का ट्रांसफर, एपिडर्मिस से हमारा प्रोटेस्टिस से मतलब थ्रू दी इजैकुलेटरी डक्ट पेनिस के थ्रू जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर.
गैमेटोजेनेसिस अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अगर गैमेट्स मतलब कि अगर हमारे इंडिविजुअल्स एक ही टाइप के, आइसोगैमेट्स मतलब कि क्या, स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखेंगे एक ही टाइप के गैमेट्स बन रहे तो हमारा वो रहेगा, क्या रहेगा, मतलब कि मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ, मतलब उनका मॉर्फोलॉजिकल देयर कैरेक्टर्स मतलब दे आर सिमिलर, जैसे आइसोगैमस। हेटेरोगैमेट्स मतलब स्पेसिफिकली इन फिगर्स लाइक अलगे में मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग, स्ट्रक्चर दे आर डिफरेंट, तो उसे हेटेरोगैमेट। स्पेसिफिकली होमोसेपियंस ह्यूमंस में भी अगर देखेंगे ओवल स्ट्रक्चर होता है किसका, किसका, ओवम का, लेकिन वही अगर देखेंगे ओवल मतलब थोड़ा सा ओवल फिर टेल वाला पार्ट, मेल मेल स्ट्रक्चर, both the structures are morphologically different। उतना ही नहीं, there are structural changes as well। सेंट्रियोल जो कि फीमेल oocyte में ओ में नहीं रहता है, इट्स बेस्ड इन मेल में। साइटोप्लाज्म का कंटेंट मेल में कम होता है, फीमेल गैमेट में बहुत ज्यादा होता है, तो दे आर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोगैमेट्स। ओके, सेम है। ओके, नेक्स्ट। ओके, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ओके, दिस आर द बेसिक थिंग्स यू शुड बी, मतलब आपको पता रहेगा। मतलब जब हम लोग बायसेक्सुअल कहते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन अ सेम इंडिविजुअल, उसे हम लोग कहते हैं बायसेक्सुअल। और ना हम लोग यही पे ऐसे है ना, हाँ, बिलोंग्स टू ओवर हियर ना, फिर कहाँ पे आते हैं हम लोग, सेक्सुअल में कि यूनिसेक्सुअल में? तो जाग रही है, we belongs to the unisexual। Unisexual मतलब male individual different and female individual different। Bisexual मतलब आर्या गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मेल मतलब कि मेल पार्ट अलग है, मतलब मेल इंडिविजुअल अलग है, फीमेल इंडिविजुअल अलग है। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट की जब भी बात करते हैं हम लोग हिबिस्कम, हिबिस्कस पाइसम, जहाँ पे मेल फ्लावर कोई अगर रहेगा तो उसे स्टैमेट फ्लावर, और फीमेल फ्लावर रहेगा तो उसे पिस्टिलेट कहते हैं। दोनों रहेंगे, जिसमें दोनों रहेंगे स्टैमेट और पिस्टल दोनों रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। मोनोशियस, अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट उसे हम लोग कहेंगे मोनोशियस, कुकुरबिता एंड कोकोनट से बाय, या फिर अगर ये दोनों अलग अलग इस पे रहेंगे तो उसे डायशियस कहते हैं हम लोग। एक हार्मोन जैसे मैंने बोला था, जैसे कि आपका अर्थोअम्ली, स्पॉन्जेस, दिस आर दी वन जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। ओके, उसे हार्मोफ्रोडाइट्स कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे नहीं आते ना तो बोल पता चला, अरे यार वी बिलोंग्स ओवर हियर। Unisexual, male and female reproductive structures are present on this different individual. So in male and female flowers are present on different plants known as dioecious plants। Specifically example is your papaya and date palms। हाँ, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कॉकरोच, हायर एनिमल्स, फंगाई में भी दे लाइक होमोथेलिक, मतलब कि बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं फिर, या फिर आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। फंगाई शोज अ डुअल नेचर एज। नेक्स्ट। ओके, this is cell division during the gamete formation। Many monoreals like fungi, algae, and the bryophytes have the haploid parental body, so they produce the haploid gametes by the mitosis। But in pteridophytes, gymnosperm, angiosperm animals have the diploid parental body, तो वो प्रोड्यूस करेंगे बाय मियोसिस से, मियोसाइट से हमारा गैमेट मदर सेल। मतलब हम लोग ने अभी फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट में हम लोग ने पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। Megaspore mother cell give rise to the female gametophyte। Microspore mother cell give rise to the microspore that will develop into the pollen grain, और उससे हमारा मेल गैमेट। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, खत्म हो गया। सर डिस्कस करूँगा। हम्म, है। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। So we talk about gamete transfer।
So male gamete needs to medium to move towards the female gamete. Specifically, the most of the organisms, male gamete is motile and female gamete is stationary. But in some fungi, both gametes are motile. So it will be like fungi में दोनों भी gametes motile. तो यहाँ से male, यहाँ से female, both will come to the intermediate place and there will be fertilization. It will be like. But in case of most of the time, it will be the male gamete who is motile and the female gamete is a stationary one. Okay. Specifically when we talk about the in case of plant, you must have noticed कि हमारा pollination हम लोग ने जब learn किया था उसमें देखा था transfer of pollen grains from anther to the stigma. तो उससे हम लोग जब होते तो by means of maybe living or non living medium, maybe abiotic और biotic factor जैसे हम लोग कहते हैं. यहाँ पे हम लोग ने देखा कि the pollen grain is nothing but the male gamete will be transferred by means of biotic agent like आपका insects, birds, bats, etc. We talk about abiotic water, आपका air, इसके through मतलब these are the medium through which it will be transferred from the anther to the stigma. Some question. Yes. Next. Okay, in bisexual self-fertilizing plant where anthers and stigma are very close to each other, तो जिससे हमारा pollination easy हो जाएगा. सिंपल सी बात है. अगर हम लोग देखेंगे when the both the male and female gamete producing part are very close and both are maturing at same time, so very easy to get transfer the pollen grains to the हमारा stigma. देयर क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पे हम लोग डायशियस प्लांट कहते हैं. डायशियस मतलब क्या, मेल प्लांट एक जगह, दूसरा प्लांट दूसरा, मतलब मेल फ्लावर एक प्लांट पे, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे. इन दैट केसेस the pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carries the male gamete, and when it reaches to the ovule, discharge the male gamete near to the egg. In dioecious animals as well, the fertilization helps to successful transfer coming together gametes. Okay, once the gamete come closer, even in fact in case of humans, we subsequently will learn as well, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग लर्न करेंगे कि जब oogenesis होता है उस टाइम पे हमारा स्पेसिफिकली सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे आके रुक जाता है. once the fertilization takes place, जब मतलब winning sperm जब टच करता है outermost layer of the ovum, at that time what happen, the event which has been arrested as metaphase 2 will be continued, will give rise to the second polar body, and meiosis 2 will be completed. Okay, look at this. This is what I said. Fertilization हो गया, zygote form हो गया. So once the fertilization takes place, the male and female gamete fuse together to form a zygote. The rotifers like honeybees, some lizards, birds, etc. Female gamete develops to the new organism without fertilization, which is known as parthenogenesis. So एक इंडिविजुअल जैसे कि हम लोग ने हनीबी में देखा था 2n रहेगा, 2n से 2n आएगा the worker, and if that worker अगर वो एक को 2n को during development, if that gets the royal jelly as a food, so it will be developed into the queen. अगर haploid रहेगा तो that will be a male. External fertilization. Types of fertilization, there are two types of fertilization, external and internal. What do you mean by external? Syngamy. Syngamy मतलब fusion of gametes when occurs in the external medium like water. Zygote is formed outside the body in case of frog. You can see the fertilization will be takes place. तो क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे aquatic animals like many algae, bony fishes and amphibians, फीमेल ने एक रिलीज किया, उस एग के ऊपर वहां पे आके मेल स्पर्म विल बी रिलीज, वहां पे दोनों का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, दिस विल वाटर, और वहां पे और यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनी बिटवीन दिस बोथ द सेक्सेस आर, मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे सिंपल सिंपल बात है, पानी में हो रहा है तो बोथ मेल फीमेल गैमेट एंड मेल स्पर्म दोनों का सिंक्रोन, मतलब दे नीड टू बी इन प्रॉपर टाइमिंग पे. तो पता चला आज मेल गैमेट फीमेल गैमेट रिलीज हुआ है, 4 दिन के बाद फीमेल गैमेट, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन विल टेक. हर एक गैमेट का एक लाइफ स्पैन होता है, बराबर. तो सिंक्रोनी बहुत है. इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, एक्सटर्नल वर्नेबल फैक्टर्स क्या रहेंगे, वहां पे कोई दूसरे प्रेडेटर्स रहेंगे या फिर वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, वहां पे सर्वाइवल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. इंटरनल when inside the body होगा तभी होगा, then आपका इट विल लाइक बिलोंगिंग टू लाइक फंगा, एनिमल्स लाइक प्लांट्स. इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे नॉन मोटाइल एग फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी
where the motile male gamete will reaches and fuses in seed plus non-motile ovule will be a male gamete, especially in seed plant non-motile male gamete carried by the to the female gamete so pollen tube मालूम है हम लोग ने देखा था सिफोनोगैमी 12th के बोर्ड में पूछा था ना तो हमारा जो pollen grain once it has been reaches to the stigma पे आने के बाद it will absorb the nutrient or the fluid from the surrounding sticky material and it will start to generate the pollen tube ये pollen tube हमारा male gamete को दो मेल गैमेट को लेके जाएगा कहाँ पे ओवल के पास फिर देन इट विल माइट बी एंटर्ड बाय 3 डिफरेंट वेज चलाजोगैमी मेसोगैमी एंड पोरोगैमी है ना zygote तो डेवलपमेंट ऑफ zygote डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल लाइक स्पेसिफिकली देखेंगे algae and fungi zygote डेवलप थिक वॉल और वहां पे वो रेजिस्टेंस क्यों होता है क्योंकि आउटसाइड प्रोटेक्शन उससे मिले तो दैट वो प्रोटेक्शन से डैमेज ना हो इसके लिए फिर अंडरगो रेस्ट होगा उसके बाद बिफोर द जर्मिनेशन होने के पहले इट विल बी जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं है ना वो वैसे होगा वंस द कंडीशन बिकम फेवरेबल इट विल जर्मिनेट देयर आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेथड तुम्हें पता है कि जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर जब किंगडम प्लांटे पढ़ा था उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेथड देखा था सिमिलर और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे बट zygote इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर गैमेट्स एंड द जैसे कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन में दो जनरेशन के बीच में ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन एक दो जनरेशन के बीच में कनेक्टिव लिंक क्या है हमारा zygote एम्ब्रियोजेनेसिस जेनेसिस मतलब बनना एम्ब्रियो तो वंस द zygote व्हिच हैज बीन फॉर्म वो एम्ब्रियो डेवलप होगा स्पेसिफिकली एम्ब्रियोजेनेसिस zygote सेल डिवीजन यहाँ पे स्टिल द टाइम ऑफ ओनली सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेयोसिस होगा आफ्टर दैट इट विल बी अ माइटोसिस जिससे हम लोग सेल डिवीजन सेल डिफरेंशिएशन होगा याद है जब हम लोग जर्म लेयर फॉर्मेशन बात कर रहे थे तीनों जर्म लेयर ह्यूमंस में देखते इंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म फॉर्म होता है और हर एक जर्म लेयर से डिफरेंट वहां पे डिफरेंशिएशन के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं हमारे बराबर है तो यही से हमारे सेल डिवीजन में इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो सेल डिफरेंशिएशन से हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स को मॉडिफाई होगा और जिससे हमारी वेरियस टिश्यू एंड अदर थिंग्स विल बी डेवलप based on this zygote development animals two type oviparous and viviparous oviparous मतलब the animals the fertilized egg मतलब animals lay the fertilized or unfertilized egg अंडे देने वाले आदमी जिसे कहते हैं in reptiles birds the fertilized egg covered by the hard calcareous shell and laid at the safe place once the incubation होगा incubation के बाद young one will be hatch out बोलो ना मुर्गी अंडे देती है और जैसे हम लोग reptile कहते हैं specifically temperature also plays an important role in case of turtle and crocodile के केसेस में टेम्परेचर also plays an important role एक सेफ जगह पे अंडे दिए जाएंगे नेक्स्ट viviparous here the zygote develop inside the young ones and the body in female body later the young ones will be deliver out of the body most of the mammals because of the proper care and protection the chances of survival young ones are greater in the viviparous compared to oviparous जाहिर सी बात है अंडे यार बाहर कोई भी होगा वहां पे दूसरे कोई जैसे कि अगर किसी बर्ड्स के अंडे रहेंगे सांप वगैरह उसे खाने के चांसेस ज्यादा होते हैं ओके दैट्स ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स सो लेट्स मूव टू द रिप्रोडक्शन इन okay so we'll talk about reproduction in the we're not going to discuss about the asexual part over here we already subsequently हम लोगों ने cover up कर दिया vegetative propagation grafting cutting these are the methods which comes under the asexual mode of reproduction in plants when we talk about sexual reproduction specifically यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे all flowering plants specifically angiospermy shows the sexual reproduction and flowers are the site of sexual reproduction next okay when you talk about the there are certain events which will like takes place like several hormonal and the structural events happens structural changes happens and that is a differentiation development of floral primordium floral मतलब क्या flower
प्राइमोडियम मतलब इनिशियल पार्ट जहां से हमारा फ्लावर डेवलप होता है उसे कहेंगे फ्लोरल प्राइमोडियम. ओके, so inflorescence means nothing but the it's like axis which bears the floral buds. We can see over here. इसी एक्सिस के ऊपर हमारे क्लस्टर लाइक फ्लावर्स डेवलप. दो टाइप के रेसिमोस पढ़े थे इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइमोस. नेक्स्ट मला पाहिजे नको. क्लासचा फोन जेव्हा बाहेर चालतो तुम्ही